السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور انجوائے کرے ہوں گے اپنے دن کو بھرپور طریقے سے۔ اور جناب بہت ہی شدت سے آپ کو انتظار ہوگا یہ جنون حاصل ہے عشق کی ایپیسوڈ 42 کا، جس کا آپ کے لیے تحریر کر رہے ہیں آیت نور۔ تو جناب انتظار ہوا ختم اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ گئے ہیں یہ ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ایپیسوڈ کی طرف کریں چلیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اگر آپ نے لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے، آئیکن بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی اور معیاری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ تو جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ 42 کی طرف۔ وہ لب بھیجے سرد تاثرات چہرے پر سجائے قریشی کے گھر آیا تھا جب باہر چوکیدار نے راستہ روکا۔ آپ اندر نہیں جا سکتے۔ چوکیدار کی بات پر اس کا ابلتا دماغ کھولنے لگا۔ آج سے پہلے اسے کبھی اس چوکھٹ پر یوں روکا نہیں گیا تھا۔ مجھے قریشی سے ملنا ہے، راستے سے ہٹو، وہ لب بھیجے غرایا۔ سوری سر، لیکن مجھے پہلے قریشی سر سے اجازت لینی ہوگی۔ چوکیدار اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تھا۔ وہ صبر کے گھوٹ بھر کر رہ گیا۔ اوکے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کر تیش پر قابو پانے کی کوشش کرتا وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ چوکیدار اب شاید اس کی آمد کے متعلق اندر انفارم کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد گیٹ کھلا اور 3 گارڈز باہر آئے۔ ہینڈز اپ۔ گارڈز کے حکم پر اس کا دل تو چاہا تھا کہ 2 جڑ دیں انہیں، لیکن فی الحال صبر کرنا لازم تھا کہ اس کا قریشی سے ملنا ضروری تھا، کیونکہ واحد قریشی ہی تھا جو زویا کے متعلق بتا سکتا تھا۔ گارڈز نے اس کے دونوں ہاتھ عقب میں لے جاتے ہوئے جکڑے، پھر اس کی تلاشی لیتے ہوئے فون اور دونوں ریوالورز کے ساتھ ساتھ اس کی جیب سے ہر چیز ضبط کر لی۔ لیٹس گو۔ اپنی کارروائی سے فراغت کے بعد اسے اگلا حکم دیا گیا تھا۔ وہ لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے گیٹ عبور کرتا قریشی کے گھر میں داخل ہوا۔ صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اسے سامنے سنگل سیٹر پر شاہانہ انداز میں بیٹھا قریشی دکھائی دیا تھا، اور اس کے لبوں سے نکلے الفاظ نے دماغ کو مزید گرمایا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے سلطان؟ ایک بادشاہ سے مجرم تک کا یہ سفر؟ لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ سجائے قریشی نے پرلطف انداز میں سوال کیا۔ زویا کہاں ہے قریشی؟ وہ بنا تمہید مطلب کی بات پر آیا۔ تمہاری بیوی ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں۔ قریشی نے سگار کا لمبا سکش لے کر دھواں فضا میں چھوڑا۔ میرے ساتھ ڈبل گیم کھیلنے کی کوشش مت کرو قریشی، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ زویا کی کڈنیپنگ میں تمہارا ہاتھ ہے، وہ دبے دبے لہجے میں غرایا۔ قریشی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ کتنی اچھی طرح جانتے ہو نا تم مجھے، اور دیکھو میں بھی تمہیں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ مجھے علم تھا واحد وہ لڑکی ہے جو تمہیں واپس مشرق لانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور میرا یقین سچ نکلا۔ بالآخر تم میرے قدموں میں آ ہی گئے۔ قریشی کے چہرے پر غرور کی جھلک تھی۔ یہ تمہاری بھول ہے قریشی، تم ابھی تک مجھے جان نہیں سکے، ورنہ زویا کو نقصان پہنچانے کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے، وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ تمہارا یہی کانفیڈنس کبھی بہت پسند تھا مجھے، لیکن آج یہی انداز کانٹا بن کر آنکھ میں کھٹک رہا ہے۔ دل میں شدت سے خواہش ابھر رہی ہے کہ اس اعتماد کو ٹوٹتا دیکھوں۔ تمہارے لیے کچھ ہے میرے پاس، دیکھنا چاہو گے؟ قریشی نے سوالی انداز میں ابروچ چکائے، پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بنا سامنے پڑا ریموٹ اٹھایا اور دیوار گیر LED آن کی، جہاں کسی تنگ و تاریک سے کمرے کی لائیو فوٹیج چل رہی تھی۔ قریشی، میرے پاس ان سب فضولیات کے لیے وقت نہیں ہے، اس لیے وہ نگاہوں کا رخ موڑتا سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، جب کسی احساس کے تحت باقی کے الفاظ ادھورے رہ گئے۔ زویا؟ اسے زویا کی آواز سنائی دی تھی، تبھی وہ تیزی سے پلٹا، اسکرین کی جانب نگاہ دوڑائی تو وہاں ایک جانب تھکے ماندے انداز میں نیچے بیٹھی زویا دکھائی دی۔ دروازہ کھولو پلیز، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں۔ فوٹیج میں زویا کے لبوں سے نکلے ٹوٹتے ہوئے الفاظ جیسے اس کے دل پر برچھیاں چلا گئے تھے، اور اس کی حالت، بکھرے بال، دوپٹہ ندارد، اس کی کن پٹی کی رگ بری طرح پھڑکنے لگی تھی۔ میرا ضبط مت آزماؤ قریشی، یہ معاملہ ہم دونوں کے درمیان ہے، اسی زویا کو اس سب سے دور رکھو، وہ بے قصور ہے، اس لیے بے قصور، اور وہ لڑکی، اس کا سب سے بڑا گناہ ہی یہی ہے کہ اس نے تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسایا۔ اس کا مرنا تو طے ہے سلطان، کیونکہ جب تک وہ زندہ ہے
तुम पलट कर मुझ तक नहीं आओगे और तुम्हें मैं खुद से दूर जाने दूँ, ऐसा कभी होगा नहीं। कुरैशी के चेहरे पर सख्ती छाई थी, जबकि उसकी बात पर सुल्तान के आसाब तने। तुम अपने हर दुश्मन को उसकी कमज़ोरी से मात देते आए हो, तभी हमेशा फातेह ठहरे। तो फिर खुद ये भूल कैसे गए कि किसी को अपनी कमज़ोरी बना लिया? याद है एक बार मैंने तुमसे कहा था कि कोशिश करना किसी दिन तुम्हारी कोई कमज़ोरी दुश्मन के हाथ ना लग जाए, और उस पर तुम्हारा जवाब क्या था? ये कि जिस दिन सुल्तान की ज़िंदगी में कोई कमज़ोरी आएगी, सुल्तान उसे अपने हाथों से ख़त्म करेगा। फिर अपनी ज़बान से कैसे फिर गए तुम अपने कौल को भूल गए, लेकिन मुझे सब याद है। तभी आज तुम्हारी इस कमज़ोरी को ख़त्म करने वाला हूँ मैं, क्योंकि मुझे वही निडर, बेखौफ और मजबूत सुल्तान चाहिए जिसे बनाने में कई साल लगाए मैंने। अपनी जगह से उठता चंद कदम का फासला अबूर करके कुरैशी उसके मुकाबिल आन ठहरा था। ये तुम्हारी खुशफहमी है कुरैशी, तुम हर हथकंडा आजमा लो, लेकिन तुम्हें वो सुल्तान वापस कभी नहीं मिलेगा जिसे अब तक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते रहे हो तुम। सुल्तान का लहजा अटल था। कुरैशी ने उसकी आंखों में देखा जहाँ सख्ती थी, मतलब वो अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं था। तुम्हें पता है, किसी चीज़ को बनाने में बरसों बीत जाते हैं, लेकिन उसे मिटाने में फ़कत एक लम्हा लगता है। मैंने तुम पर इतने साल खर्च करके तुम्हें नाम, पैसा, पावर, बादशाहत, इज़्ज़त और रुतबा दिया, तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया, लेकिन तुम एहसान फरामोश निकले। एक चीज़ भूल गए तुम कि बनाने वाला मिटाने की सलाहियत भी रखता है। अगर मैं तुम्हें सुल्तान बना सकता हूँ तो इस सुल्तान को सफ़ाहती से मिटाने की हिम्मत भी रखता हूँ। कुरैशी का लहजा वार्निंग देता हुआ था। सुल्तान के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट उभरी, इस्तेहज़ाइया और तंज़िया मुस्कुराहट। तुमने ठीक कहा कुरैशी, किसी चीज़ को बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन मिटाने में फ़कत एक लम्हा। मुझे बहुत अच्छी तरह याद हैं वो सारे एहसानात जो मुझे गुनाहों की दलदल में धकेलने के लिए किए गए, लेकिन शायद तुम ये भूल चुके हो कि मेरे आने से पहले तक तुम सिर्फ एक मामूली से गैंगस्टर थे जो दूसरों के अंडर काम करता था। तुम्हें यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाने वाला मैं हूँ। तुम्हारा बैंक बैलेंस जो मेरी इस दुनिया में आने के बाद हर गुज़रते रोज़ के साथ ऊपर चढ़ता गया, उससे भी बेखबर नहीं हूँ मैं। मुझे पूरी तरह कैश किया है तुमने इन गुज़रे सालों में, लेकिन एक बात याद रखो, अगर मैं ये सारा एम्पायर बना सकता हूँ तो इसे मिटाने के लिए मुझे भी फ़कत चंद लम्हे लगेंगे और सब कुछ खाक में मिल जाएगा। तुम्हारा ये एम्पायर, तुम्हारा बैंक बैलेंस और तुम भी। सुल्तान का पुरसुकून लहजा अब की बार कुरैशी को तैश दिला गया था। मुझे लगा था तुम्हारे साथ ये सब करके मुझे दुख होगा, अजियत पहुँचेगी, लेकिन अगर तुम गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगोगे, वापस लौटना चाहोगे तो मैं तुम्हें दूसरा चांस दे दूँगा, लेकिन तुम्हारा ये एटीट्यूड। कुरैशी ने माथा मसला, फिर जेब से फ़ोन निकाल कर चंद बटन दबाए और मुस्कुराते हुए उसकी जाने मुतवज्जह हुआ। ठीक है, तुम कोशिश कर लो, मैं भी देखता हूँ कि अब बिना पावर और पैसे के तुम क्या कर पाते हो। खुद को बचाओगे या अपनी बीवी को? क्योंकि मेरे घर से निकलते ही तुम्हें कुछ और सरप्राइजेस भी मिलने वाले हैं। तुम्हारी बर्बादी का सफ़र शुरू हो चुका है सुल्तान। तुम्हारे साथ अब जो कुछ होगा वो तुम अपनी आंखों से देखोगे, लेकिन जानना चाहोगे तुम्हारी बीवी के साथ क्या होने जा रहा है? आज वो मेरे बेटे काशिफ के हाथों इबरत का निशान बनने जा रही है। सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं उसके पास। ठीक 3 घंटों के बाद उसकी नीलामी शुरू होगी और इस हुस्न की मलका को सजा सवार कर नीम बरहना हालत में बदतमाश लोगों के सामने पेश किया जाएगा, जहाँ इसकी कीमत लगाई जाएगी। तसव्वुर करो उस लम्हे को कि वो औरत जिसे तुम दुनिया की नज़रों से दूर 7 पर्दों में छुपा कर रखना चाहते हो, मुख्तलिफ मर्दों की गंदी नज़रें उसके वजूद में छेद करेंगी, और फिर कोई एक बंदा जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा वो उसे अपने साथ ले जाएगा, जहाँ कई रातें उसके साथ। कुरैशी सवाक लहजे में कहता जा रहा था, जब सुल्तान ने जब खोते हुए नताइज की परवाह किए बिना पूरी कुव्वत से उसके जबड़े पर ठोकर मारी थी। कुरैशी के कराहने पर लाउंज के दरवाजे में खड़े गार्ड तेज़ी से अंदर दाखिल हुए थे और सुल्तान को गन पॉइंट पर रखा था, लेकिन सुल्तान बिना डर के कुरैशी के करीब आया और उसकी आंखों में आंखें गाड़ी।
सोचो, जो ज़ोया के मुतालिक ऐसी बात करने पर तुम्हारा मुंह तोड़ सकता है, वो ज़ोया को हाथ लगाने वाले का क्या असर करेगा? ज़ोया को बाजियाब तो मैं करवा लूँगा, लेकिन तुम्हें अब तबाह होने से कोई नहीं रोक सकेगा कुरैशी। वो दाँत पीसता घुर्राया था। इसकी बात पर शदीद तैश में होने के बावजूद कुरैशी हंसा और फिर हंसता चला गया। बाजियाब तो तब कराओगे ना जब ये जान सकोगे कि वो है कहाँ, और अगर तुम जान भी गए तो तुम्हारे लिए इतनी रुकावटें खड़ी होने वाली हैं कि जब तक तुम उसकी लोकेशन पर पहुंचोगे वो जाने कितने मर्दों की हविस की भेंट चढ़ती अपनी असमत खो चुकी होगी। 3 घंटे हैं बस तुम्हारे पास सुल्तान, जिसमें से 10 मिनट ऑलरेडी गुजर चुके हैं। जाओ, जाकर ढूंढो अपनी बीवी को, क्योंकि गुजरता वक्त और लम्हे किसी के लिए रुका नहीं करते। कुरैशी ने बात मुकम्मल करके गार्ड को इशारा किया तो उसके इशारे पर सुल्तान के हाथ भी आज़ाद कर दिए गए थे। वो चंद पल खूंखार निगाहों से उसे घूरता रहा। कुरैशी से कुछ भी उगलवा पाना नामुमकिन था, ये बात वो जान गया था। अब यहाँ वक्त ज़ाया करना हमाकत थी। ज़ोया को उसे खुद ही ढूंढना था, क्योंकि पहली तरजीह ज़ोया की बाजियाबी और हिफाजत थी। कुरैशी से निमटने के लिए तो बहुत वक्त पड़ा था कि इस सब के बाद वो उसे माफ़ करने का कोई इरादा नहीं रखता था। जहन में तेज़ी से जोड़ तोड़ करता वो पलटा और कुरैशी के घर से निकल गया। वो रोड साइड पर गाड़ी रोके बेबस सा बैठा था। समझ में नहीं आ रहा था कि ज़ोया को आखिर कहाँ तलाश करे। वो कुरैशी की नस नस से वाकिफ़ था और उसे अंदाज़ा था कुरैशी या काशिफ ज़ोया को किसी ऐसी जगह रखने की गलती कभी नहीं करेंगे जिससे सुल्तान वाकिफ़ हो। वो उन लोगों के तकरीबन हर खुफिया ठिकाने से वाकिफ़ था, लेकिन जो कमरा कुरैशी के घर फुटेज में उसने देखा था वो उसकी पहचान में बिल्कुल नहीं आया था। तो यकीनन ज़ोया को किसी नई जगह पर रखा गया था, लेकिन कहाँ? सोच सोच कर उसका दिमाग फट रहा था। कुरैशी से ताल्लुक़ होने की वजह से जो सोर्सेज उसे मिले थे वो अब छिन चुके थे। वो कुरैशी के नेटवर्क के लोगों से मदद नहीं ले सकता था। इस जंग के आगाज़ का अंदाज़ा था उसे, तभी उसने घर की सिक्योरिटी बढ़ाई थी। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी आंखों के सामने वो ज़ोया को यूं उठाकर ले जाएंगे। बास्टर्स! शेयरिंग पर मुक्का रसीद करता वो तल्ख हुआ। फिर जेब से वो ब्रेसलेट निकाला जो उसने ज़ोया को भिजवाया था और जिसमें GPS ट्रैकर था। ये ब्रेसलेट उसे नानू के घर और ज़ोया के कमरे से मिला था, लेकिन ज़ोया शायद ब्रेसलेट पहनना भूल गई थी, वरना उसकी लोकेशन आसानी से ट्रेस हो सकती थी। वो इस ब्रेसलेट को छूता आंखें बंद कर गया। निगाहों में फिर से वो तकलीफ़देह मंजर उभरने लगा था, जहाँ वो उस कमरे में किसी को मदद के लिए पुकार रही थी। गहरा सांस भरते हुए सुल्तान ने आंखें खोलीं तो निगाह बराबर की सीट तक गई, जहाँ फूलों की चंद पत्तियाँ बिखरी पड़ी थीं। उसने ज़ोया के घर जाते हुए उसके लिए बुके लिया था, लेकिन फ्रंट सीट पर बड़ा जवान टाइगर उस बुके के छेड़छाड़ कर रहा था और शायद तभी वो पत्तियाँ वहाँ गिरी थीं। उसने सर झटकते हुए कार स्टार्ट करने के लिए इग्निशन की जानिब हाथ बढ़ाया, तभी इधर उधर परवास करती सोचें एक नुक्ते पर ठहर सी गई। टाइगर! वो एकदम चौंका। जहन चंद घंटे पहले का मंजर दोहराने लगा था, जब उस पर रुकब से वार करने के बाद ज़ोया को अगवा किया जा रहा था। होश खोने से पहले आखिरी मंजर में उसने टाइगर को भी उस गाड़ी के पीछे लपकते हुए देखा था जिस गाड़ी में ज़ोया को ले जाया गया था, और होश में आने के बाद उसे टाइगर कहीं नहीं दिखा था। ज़ोया की परेशानी में उसने इतना ध्यान भी नहीं दिया, और अब उम्मीद का एक नया सिरा मिला था उसे। वो तेज़ी से फ़ोन निकालता स्क्रीन पर उंगलियां चलाने लगा। बहुत पहले एक बार टाइगर की गुमशुदगी और फिर बमुश्किल उसकी तलाश में कामयाबी के बाद उसने टाइगर की गले के पट्टे के साथ छुपाकर एक GPS ट्रैकर फिट करवाया था, ताकि आइंदा ऐसी किसी सूरत हाल में परेशानी से बचा जा सके। और आज वही ट्रैकर उसके काम आने वाला था। उसने फ़ोन से कनेक्टेड GPS से टाइगर की लोकेशन ट्रेस की तो वहाँ इस्लामाबाद के किसी एरिया की लोकेशन शो हो रही थी। टाइगर इस्लामाबाद में? वो ठटका। किसी को किडनैप करके कराची से इस्लामाबाद फ़्लाइट के ज़रिए ले जाना तो नामुमकिन था, यानी ज़ोया को बाय रोड ले जाया गया था। तो क्या टाइगर ज़ोया के ताक़ुब में किडनैपर्स का पीछा करते इस्लामाबाद पहुंचा था? उसके जहन में झमाका सा हुआ। कुरैशी और काशिफ का ताल्लुक डार्क वेब से भी था। खुसूसन काशिफ डार्क वेब की गंदे और गलत कामों में मुलविस था, और डार्क वेब की तमाम तर वर्किंग वो इस्लामाबाद में करता था, जहाँ बाकायदा एक अड्डा बना रखा था उसने। सुल्तान डार्क वेब से मुतालिक हर मामले से दूर रहता था, तभी ना इन सब कामों में कभी पड़ा था और ना काशिफ और कुरैशी के डार्क वेब के कामों में कभी कोई मुदाखलत की थी उसने। काशिफ का अड्डा इस्लामाबाद में है ये जानता था वो,
लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन से नावाकिफ़ था और आज उसका वफादार टाइगर उसकी लोकेशन तक पहुंच चुका था। कुरैशी और काशिफ जानते थे कि सुल्तान उनके डार्क वेब के अड्डे की लोकेशन के मुतालिक नहीं जानता, तभी यकीनन ज़ोया को वहीं ले जाया गया था। एक उम्मीद थी जो उसे थमा दी गई थी। थैंक्स टाइगर। फ़ोन पर शो होती लोकेशन को देखता वो बेख्तियार बड़बड़ाया, फिर बैक की प्रेस करता वो कोई और ऐप खोल गया। इस्लामाबाद की फ़्लाइट्स ऑनलाइन चेक करते हुए बिलाखिर उसे 1 घंटे बाद की फ़्लाइट का टिकट मिल गया था। जब आप सीधे रस्ते पर चलने का तहिया कर लें तो कायनात की हर चीज़ आपको आपके फैसले पर साबित कदम रखने के लिए आपकी मदद करने में जुट जाती है। वो बेख्तियार ऊपर की जानिब देखता मुस्कराया, गोया अपने रब का शुक्र अदा किया हो। फिर गाड़ी स्टार्ट करता तेज़ी से ड्राइव करता अपने घर की जानिब बढ़ा कि उसे फ़ौरन अपना पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट पहुंचना था। घर के मेन गेट पर गाड़ी रोकता वो भागते कदमों से घर में दाखिल हुआ। अपने कमरे में जाते हुए उसने अलमारी खोली थी। अपना पासपोर्ट और दूसरी ज़रूरी अशिया लेता वो पट बंद करता पलटा ही था जब बाहर से सुनाई देते सायरन ने उसे बुरी तरह चौंकाया। वो तेज़ी से खिड़की की जानिब आया, पर्दा ज़रा सा हटाकर देखा तो अपने घर के बाहर खड़ी बहुत सी पुलिस की गाड़ियाँ निगाहों की जद में आईं। पर्दा ज़रा सा हटाकर देखा तो अपने घर के बाहर खड़ी बहुत सी पुलिस की गाड़ियाँ निगाहों की जद में आईं, जिनसे उतरते हथियारों से लैस अहलकार उसके घर को चारों जानिब से घेर चुके थे। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। तो जनाब जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ बहुत जल्द हम इसकी अगली एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।